Welcome back to another session of Judicious. Phrase substitution is going to be the topic of discussion in this particular session. So, what do we understand by a phrase? Phrases are basically short group of words which forms a unit either on its own or within a sentence. And when we talk about substitution, so the word substitution basically means substitution is done by putting one phrase in the place of another. So, we now have the basic understanding that phrase substitution is a grammatical device to use some group of words in the place of the words which are already existing in a sentence. And this process leads to overall improvement in the structure of the sentence. Fine. So if we look at the phrase substitution exercises, so basically there's going to be a bracketed part in each of the following sentence, and then there are going to be certain alternatives. Now what the student has to do is, out of the given alternatives, he or she has to select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. Although there is also a possibility that there might be no improvement required. So in such a situation, the student is required to select no improvement over there, that option. Fine. The directions like this, that there are going to be 25 questions and we have to find the correct alternative in each sentence. So question number 1 is whether it, now under bracket it is verb balancing, right? So whether it, verb balancing is the word where there are going to be some changes. Fine. So the budget or the day-to-day menu, grandma was the expert. Options are has balancing, verb balancing, was balancing या no improvement. तो बेसिकली यहाँ पर हम जो सेलेक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वॉज बैलेंसिंग, मतलब कि चाहे वो बजट को बैलेंस करना हो या डे टू डे मेन्यू को, ग्रैंडमा जो है वो एक्सपर्ट थी, तो हैज नहीं आएगा क्योंकि ये ग्रैंडमा वॉज द एक्सपर्ट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी ये पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज बैलेंसिंग आएगा। वर्ब बैलेंसिंग भी नहीं क्योंकि एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रैंडमा, राइट? हैज इसलिए नहीं है बिकॉज सेंटेंस पास्ट में है, सो वॉज बैलेंसिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट answer over here. Question number 2 is the process of decolonization, who started from our own independence era, remains unfinished even after completion of 7 decades. Now the options are whom started from, that started from, that starts from या no improvement. Who started from, ये bracketed part है, इसमें improvement की जरूरत है। तो process कोई individual नहीं है, कोई person नहीं है, ठीक है? तो whom नहीं आएगा। That started from is going to be absolutely correct because we are referring to a process of decolonization. अगर कोई किसी person की बात हो रही होती तो who लग सकता था, right? But now it is a process, so that started from रहेगा। That starts from इसलिए नहीं क्योंकि again this question में जो sentence है वो past का है, clearly mentioned है, remains unfinished even after completion of 7 decades. Moving on to question number 3, 15 Chinese couples were married at a ceremony in Colombo to mark the anniversary of, अब ब्रैकेट में हमारे पास है डिप्लोमेट रिलेशंस बिटवीन दी टू कंट्रीज। ऑप्शंस आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग द टू कंट्रीज। नाउ अमंग हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे बिकॉज अमंग इज व्हेन देयर आर मोर देन, अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा कंट्रीज होते तो अमंग को यूज कर सकते थे। फिर आगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, और सी हैज डिप्लोमेसी रिलेशंस, ये बिल्कुल यहाँ पर डिप्लोमेसी रिलेशन बिटवीन ईच अदर इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर रहेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेसी वर्ड से गलत हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑल ऑफ अस ब्रैकेट में हैड बीन फिलोसॉफिकल थिंकर्स वी वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय स्कीमिंग पॉलिटिशियंस ऑल दीज इयर्स। ऑप्शंस आर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या नो इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी नो इंप्रूवमेंट। रीजन बीइंग यहाँ पर हैड बीन का भी यूज है एक ही सेंटेंस में और हैव बीन का भी है। ये इंडिकेटिव है कि एक घटना, एक इंसिडेंट पुराना हो चुका है इन रिलेशन, इन कंपैरिजन टू द अदर। तो यानी कि फिलोसॉफिकल थिंकर्स, इफ ऑल ऑफ अस, अगर हम सारे फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते, ये और पास्ट की बात कर रहा है, वी वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय स्कीमिंग पॉलिटिशियंस ऑल दीज ईयर्स, मतलब इतने जो सालों से हमको धोखा दिया गया, डिसीव करा गया बाय द स्कीमिंग पॉलिटिशियंस, वो नहीं होता अगर हम उससे पहले ही फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि एक इंसिडेंट पुराना है एज द कंपेयर इन कंपैरिजन टू द अदर। तो हैड बीन फिलोसॉफिकल थिंकर्स इज ओल्डर एज कंपेयर टू हैव बीन डिसीव्ड बाय स्कीमिंग पॉलिटिशियंस। Question number 5, supporters of the leading power doctrine often argue rightly that India must be more forthright and articulate in, ब्रैकेट में है, expression its position on issues। इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा expressing its position on
issues. Question number 6, it is time the 4 years old is learning how to read and write. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये मतलब ये बात कर रहा है कि अब it's high time कि a 4 year old should learn how to read and write. तो was learning, has learned नहीं, learned ठीक रहेगा. अगर यहाँ पर LEARNED learned भी हो तो वो भी करेक्ट रहता, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं जनरली. क्वेश्चन नंबर 7, नेहा वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर मैरिज. ऑप्शंस है एज, व्हेन, देन या नो इम्प्रूवमेंट. व्हेन is the correct answer over here. He plays football and basketball also. वो फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी, तो also की जगह यहाँ पर रहेगा 2. क्वेश्चन नंबर 9, it is 15 years since I has begun living here. ब्रैकेट में has begun है, इसकी जगह पर began, since I began living in here. 15 साल हो गए जब से मैं यहाँ पर रहना स्टार्ट करा. क्वेश्चन नंबर 10, can you go and ब्रैकेट में आ गया ask from the cook if the soup is ready. ऑप्शंस है ask from the cook when the soup, ask the cook if the soup, या फिर ask of the cook if the soup. So correct option is going to be option number B, ask the cook if the cook से पूछिए कि क्या soup ready है. Question number 11, a fire broke out in a slum cluster in the capital yesterday. ब्रैकेट में है for short circuit at the overhanging wired. ये इनकरेक्ट दिख रहा है. For short circuit in the overhanging wires due to, yes, due to short circuit in the overhanging wires. Option B is seeming correct because option C में है due to short circuiting on the overhanging wires is not correct. Option B is going to be the right answer. Question number 12, he sat down beside me and ब्रैकेट में है start to read his newspaper. अब sat down है मतलब ऑलरेडी पास्ट का दिखा रहे हैं, तो started reading हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 13, I think all our furniture needing to be polished. ये इनकरेक्ट है. आर नीडिंग टू बी पॉलिश्ड, नीड टू बी पॉलिश्ड, नीड्स टू बी पॉलिश्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 14, एज फियर्ड डिफरेंस इनटू, ये ब्रैकेट में है द फैमिलीज पोज अ हर्डल, डिफरेंसेस इनटू, डिफरेंस एज इन, डिफरेंस अमंगस्ट. राइट, फैमिली में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो डिफरेंसेस अमंगस्ट द फैमिलीज पोज अ हर्डल. क्वेश्चन नंबर 15, अप टू, ये ब्रैकेट में है द टाइम ही वाजंट हियर वी वर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम. Till to up, till the time, yes, till the time is going to be correct. To the time नहीं आएगा, up the time नहीं आएगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है. Till the time he wasn't here, we were not sure if he will actually come is correct. Question number 16, the stove to lit, ये ब्रैकेट में है using a matchstick with each wick lit individually. Were lit, are lit, was lit, या no improvement. The stove was lit using a matchstick, each wick lit individually. Yes, क्योंकि स्टोव एक ही है. यस, उसके अंदर विक मल्टीपल है, बट द स्टोव इज सिंगुलर, सो वॉज लिट इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, एवरीबडी वॉज देयर एक्सेप्ट मी. दिस सीम्स एब्सोल्युटली फाइन टू मी, सो देयर इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट आई, माई या माइन की जरूरत नहीं है. सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18, ऑफिशियल्स से मोर देन 10 million people take a dip at the confluence of the rivers Ganga and Yamuna. ब्रैकेट में आ गया इन ऑस्पिशियस डेज फॉर कुंभ मेला. ऑप्शंस आर ऑन ऑस्पिशियस डेज ड्यूरिंग कुंभ मेला, ऑन ऑस्पिशियस डेज फॉर कुंभ मेला, या इन ऑस्पिशियस डेज ड्यूरिंग कुंभ मेला, या नो इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन करेक्ट है ए, ऑन ऑस्पिशियस डेज ड्यूरिंग कुंभ मेला, मेला के दौरान के जो ऑस्पिशियस यानी कि अच्छे यानी कि लकी डेज जो होते हैं उसमें पीपल यू नो दे टेक डिप एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना. तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी correct. Question number 19, Australia had to deploy the army to tackle bracket में है the devastating floods that inundate homes, schools and airports in the country's northeastern parts. Options are the devastating floods what inundate homes, no, the devastating floods that were inundating homes, the devastating floods that inundated homes, and no improvement. Option C रहेगा. inundate का मतलब होता है बह जाना, right? तो inundated हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इनंडेटेड, तो ये पास्ट में हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे उसी टेंस में. क्वेश्चन नंबर 20, द मनी कलेक्टेड ब्रैकेट में है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वाज डिपॉजिटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स फंड. ऑप्शन है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स, मल्टीपल स्कूल्स आ रहा है ये, और दिस स्कूल्स भी है, या तो दीज स्कूल्स होता तो ये इनकरेक्ट है. फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्कूल, या बाय द स्टूडेंट्स एट दिस स्कूल.
no improvement. There is absolutely no improvement required in this sentence. Money collected by the students of this school. बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी improvement की जरूरत नहीं है. अब ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ये. All the professor of this college are provided with free bungalows. All the professor, या तो यहाँ पर प्रोफेसर्स होता क्योंकि मल्टीपल प्रोफेसर्स की बात हो रही है, मगर वो नहीं है. ऑप्शन देख लेते हैं. ईच प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज, आगे आर प्रोवाइडेड है तो ये नहीं चलेगा इसके साथ. ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज या ऑल प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज, तो ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑल द प्रोफेसर्स. सी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ऑल प्रोफेसर के बाद यहाँ पर मल्टी प्लूरल नहीं लगा रखा, एस नहीं है. ए इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है कि ईच प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज, आर लिखा हुआ है. इज होता अगर ये तो ये वाला ठीक रहता, मगर हमारा एक्चुअल आंसर है बी, दैट इज ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज. आगे है आर प्रोवाइडेड विद फ्री बंगलोस, सो इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. बोथ आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में है, हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग कंज्यूमर्स नाउअडेज. अब हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी की जगह हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी, इज गेन्ड पॉपुलैरिटी, विल हैव गेन्स पॉपुलैरिटी. तो हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि नाउअडेज की बात चल रही है, कोई पास्ट नहीं आएगा, ये करंट की बात है. क्वेश्चन नंबर 23. ही इज सेड टू हैड डिफ्रॉडेड, ब्रैकेट में है, मैनी पीपल ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज टिल डेट. बी फ्रॉड ऑफ, डी फ्रॉड, बी इन फ्रॉड ऑफ, या हैव डिफ्रॉडेड इज गोइंग टू बी करेक्ट. उसने कई लोगों को कई लाख रुपए का फ्रॉड कराया उनके साथ, तो ये, और टिल डेट है मतलब करंट की बात चल रही है. क्वेश्चन नंबर 24. ब्रिटिश एयर स्पेस हैज बीन, ब्रैकेट में है, फोकसिंग ऑन बिल्ड यूरोपियन लिंक्स, फोकसिंग ऑन बिल्ड, फोकसिंग ऑन फॉर्ज्ड, फोकसिंग ऑन फॉर्जिंग. दिस इज करेक्ट. फॉर्जिंग का मतलब होता है क्रिएट करना. So option C is going to be right over here. Last question is, I would love to come to your party. Thank you for invites me. Invites की जगह invited, invite या inviting या no improvement. बिल्कुल clear है, simple है. Thank you for inviting me. मुझे invite करने के लिए आपका शुक्रिया, और शुक्रिया आप सभी लोगों का इस सेशन देखने के लिए भी. Thank you for watching and we'll continue with more such videos. Thank you so much.